everyone on Yourpedia, and this particular video is related to something which is very unfortunate, and that is a lot of students committing suicide in top educational institutes. One of the reason which looks like is lot of academic pressure maybe, or maybe stress for long duration of time, maybe couple of years they are into the same course. That can be the reason. So in March, IIT Madras में somebody committed suicide, PhD scholar committed suicide, and we saw that in many news channels also, many newspapers also. Similarly in other institutes also, in other IITs also, students committing suicide. You know, IITs are the premium institutes and the top institutes of the country, and best brain only go there. And when you are couple of years into that institute, IITs have their own energy, their own aura. They are the best institute with the best faculty, best students, best infrastructure. So why this unfortunate part is happening in those institutes? That is a thought-provoking question. I have spent 10 years in IIT system. I've been student there, I mentored there. So this IIT system is something which is very good. I mean, they are the temple of education in India. And student committing suicide in this institute is unfortunate. By this video, I am not here to make any kind of judgment, mistake of professor or mistake of student. I am not going to say that. But what I feel is like after comparative analysis of various top global institutes, I went to Harvard, I went to Massachusetts, and top universities like Princeton. I visited and I met people there, and I saw so many IITs. On the basis of that, I found, and that is my personal experience, that PhD should not look like a course which is students are getting depressed in or they are not enjoying. Because if you want to become super specialist, or you want to run your economy, you want to make your society knowledge society, then innovation, research and development is very important. And PhD is the epitome of research qualification, I must say. And इस डिग्री में स्टूडेंट को फ्रस्ट्रेशन अगर मिल रहा है तो स्टूडेंट पीएचडी में नहीं जाएंगे. अगर 6-7 साल प्रोफेसर्स के पास आपको काम करना पड़ रहा है एंड देन आपका कोई आउटपुट निकल के नहीं आ रहा है, देन नोबडी विल फील मोटिवेटेड टू गो फॉर पीएचडी. और मैंने आपको पहले बताया था कि एक ट्रेंड हमने भी ऑब्जर्व किया है. 5 साल पहले योरपीडिया बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को भेजता था आईआईटीज़ के अंदर, एंड अभी भी हम मोटिवेट करते हैं स्टूडेंट्स को आईआईटी में जाने के लिए एंड टॉप इंस्टीट्यूट इंडिया में पीएचडी करने के लिए. लेकिन हमने ट्रेंड देखा, अगर मैं 3 साल पीछे चला जाऊं तो जितने भी स्टूडेंट्स पीएचडी करने जाते थे इंडिया में थ्रू योरपीडिया, 80% दे यूज्ड टू गो टू इंडिया एंड 20% यूज्ड टू गो अब्रॉड. अब वो रिवर्स हो गया, 80% स्टूडेंट्स आर प्रेफरिंग अब्रॉड. मैंने पहले बताया था उसके रीजंस हैं कि वहाँ पे स्टूडेंट वीकेंड्स पे डिटॉक्सीफाई हो रहा है, एंजॉय करता है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड नहीं होता उसका, वीकेंड पे कोई उसको बॉदर नहीं कर रहा, सैलरी अच्छा मिलता है, पीएचडी में सैलरी मिलता है. पीएचडी इज़ अ हायर एजुकेशन, नॉट ओनली हायर एजुकेशन कोर्स, इट इज़ अ जॉब. इंडिया में आपको स्कॉलरशिप कम है और बहुत साल तक मेहनत करनी पड़ रही है. इकोसिस्टम भी कई बार ऐसा होता है कि प्रोफेसर बहुत कोऑपरेट नहीं कर रहा है, एंड पीएचडी के बाद अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आती. पीएचडी के बाद एक अपॉर्चुनिटी पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप होता है, जो इंडिया में पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत लिमिटेड हैं. तो सीरियसली सोचना पड़ेगा गवर्नमेंट को या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को, टॉप प्रोफेसर्स को, एकेडमिशियंस को, रिसर्चर्स को, कि पीएचडी स्टूडेंट क्यों करे. बहुत बड़ा क्वेश्चन, व्हाई अ स्टूडेंट शुड गो फॉर पीएचडी. पीएचडी आर रिक्वायर्ड, अदरवाइज चलाएंगे कैसे इंस्टीट्यूट. पीएचडी आर रिक्वायर्ड टू रन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. आज आप इसरो, डीआरडीओ, बीआरसी की बात करते हैं, वो रिसर्च होता है वहाँ पे. पीएचडी इज अ रिसर्च कोर्स. एंड ये डिग्री सुन के डर नहीं लगना चाहिए, मतलब somebody saying PhD you are fearing, ऐसा नहीं होना चाहिए. ऐसा होना चाहिए PhD means opportunity. The day you say PhD and you are telling your parents, you are telling everybody and they are saying okay this is opportunity, तो वैसा होना चाहिए, डर नहीं लगना चाहिए. लेकिन वो तब होगा अगर आपको रिम्यूनरेशन अच्छा मिलेगा, सैलरी अच्छा मिलेगा. बहुत टाइम से हम सुन रहे हैं इंडिया में पीएचडी का स्कॉलरशिप 60,000 हो जाएगा, 70,000 हो जाएगा. देखो एमटेक के बाद आप पीएचडी कर रहे हो तो इसको आप एक जॉब की तरह से एडवर्टाइज करो. 70,000 60,000 स्कॉलरशिप मिल सकता है. जितना पीएसयू जॉब में मिलता है उतना पीएचडी को मिलना चाहिए. एक बीटेक के बाद आप पीएसयू ज्वाइन करते हो 70,000 मिलता है, पीएचडी में क्यों नहीं मिल सकता है. आप चाहे कम नंबर ले लो, लेकिन उसको जैसे प्रधानमंत्री आपने रिसर्च फेलोशिप बना रखा है PMRF, वैसा ज़्यादा किया जाए.
स्ट्रिक्ट टाइम के अंदर इसको कंप्लीट किया जाए, प्रोजेक्ट टाइमलाइन हो, जैसे यूरोप में है 3 साल में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद की अपॉर्चुनिटी प्लेसमेंट बहुत अच्छी हो। मैंने खुद कई बार आपको बताया कि जब मैं आईटी दिल्ली में पीएचडी कर रहा था तो आई लिटरली फाउट विद द प्लेसमेंट सेल कि पीएचडी वालों के लिए अपॉर्चुनिटीज क्यों नहीं है, प्लेसमेंट क्यों नहीं है पीएचडी वालों के लिए। बीटेक को प्लेसमेंट दे रहे हो तुम, एमटेक के लिए भी कर रहे हो, लेकिन पीएचडी वालों को नेग्लेक्ट किया है। पीएचडी को पीएचडी के बाद क्या करना है वो अगर पता नहीं है, 6-7 साल तक तुम 30,000 रुपये से ही काम चला रहे हो, जिसमें 15,000 20,000 तो तुम्हारा वैसे ही खर्चा है। तो आपके जो फ्रेंड्स होंगे दे मस्ट बी अर्निंग वेरी गुड, और आपको इसमें मोटिवेशन नहीं मिलेगा। और 5-6-7 साल तक अगर तुम इसको ड्रैग कर रहे हो, उसके बाद भी अनसर्टन है फ्यूचर, इट शुड नॉट बी दैट। सो माई दिस वीडियो वॉज, अगर आपको लगता है आपके कोई अपने आइडियाज़ हैं, कमेंट्स हैं, प्लीज़ शेयर योर कमेंट्स फ्रेंड्स, क्योंकि ये वीडियो मैं आगे शेयर करने वाला हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जो कुलीग्स हैं आईटी सिस्टम के अंदर। तो अगर आपके इसमें कोई व्यूज़ हैं तो आप अपने व्यूज़ यहाँ पे शेयर करो, सो दैट ये जो वीडियो है ये मैं सब लोगों को भेजूं, इवन यूजीसी में भेजूं, एआईसीटी में भेजूं, आईआईटी डायरेक्टर्स, आईआईटी प्रोफेसर, सबको वीडियो भेजूंगा। एंड योर व्यूज़ दे शुड सी, professors should also see, students should also see, and let's come out, let's find out some solution. So it is not that we will put professor as alien के professor की गलती है, student की गलती है, not that, but let's find the solution to this, and solution निकल जाएगा। So let's do that. And very important, you know, this human life should not be lost. There is no logic, there is no justification for suicide. नहीं है, beautiful life, you have to lead it and you have to make it purposeful. So with this I end up my discussion. All the very best. Thank you.